Now we shall learn the most sophisticated part, rather the implication of all these three correlation, simple, partial and multiple in research. You can see simple, partial and multiple correlation and hypothesis testing. स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट की मदद से हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। मतलब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने रिसर्च स्टडीज में सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस क्रम में हमने 3 वेरिएबल, एक एग्जाम्पल हमने लिया है और उस वेरिएबल को ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, उसके हाइपोथेसिस लिखे हैं। मतलब यह कि हमने प्रॉब्लम नहीं लिखा है, लेकिन उसको यदि आप प्रॉब्लम बना दें, देन दैट मे बी ए प्रॉब्लम फॉर योर PhD program, for your MA dissertation program and like that. So let us see the related objective first, then hypothesis. I shall not read, rather we shall discuss it. So you can see there are objectives in which the relationship, the simple correlation between 3 variables, and again the 4th and 5th objectives is related to the partial correlation and 5th multiple correlation. So you can say the 4th and 5th objective is related to partial and multiple correlation coefficient respectively, and the 6th one is related to prediction. There is certain role of multiple correlation, but for the same regression equation may help us. Partially we can guess, we can predict with the help of multiple correlation as well. And for these objectives you can see the hypothesis, related hypothesis. So against all these 6 objectives we shall write 6 hypotheses as well. What are these? These are the hypotheses you can see. So hypothesis 1 against objective 1, hypothesis 2 against objective 2, hypothesis 3 against objective 3, hypothesis 4 against objective 4, hypothesis 5 against objective 5, and hypothesis 6 against objective 6. So all these hypotheses have been written on the line of objective. What we have to say, that the first 3 hypothesis is related to simple correlation, the 4th hypothesis is related to partial correlation coefficient, and the 5th one is related to multiple correlation, and of course 6 is related to prediction. The hypothesis itself is telling. So firstly, after this presentation, rather this writing of objective and hypothesis, now we shall discuss and learn how this can be tested. So let us start to learn how we can test hypothesis with the help of simple, partial and multiple correlation. As we have specified the first objective, that is to find out the relationship between curiosity and intelligence, and for the same we have written the hypothesis
देयर इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी, पहला क्यूरियोसिटी एंड द सेकेंड इंटेलिजेंस। मतलब यह है कि क्यूरियोसिटी हम लोग मेजर करेंगे टेस्ट की मदद से, वो एक ग्रुप होगा। दूसरा ग्रुप इंटेलिजेंस को मेजर करेंगे, वो होगा, मतलब हमारे पास 2 सेट ऑफ स्कोर्स होंगे और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में आर निकालने के लिए हमको 2 सेट चाहिए। मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस क्यूरियोसिटी, नॉट सीआर, rather we should write the CU. So curiosity and intelligence. So one set of score for curiosity and another set for intelligence, और उन दोनों के बीच में हमको कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन निकालेंगे। यदि वैल्यू आएगा, 2 मीन हम लोग लगाते हैं तो 2 ग्रुप है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा n-2, तो 500 है तो 492 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो भी वैल्यू आएगा उसको हम देखेंगे। यदि सिग्निफिकेंट है तो माना जाएगा कि क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। इसके लिए हमने हाइपोथेसिस बनाया, देयर इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। क्यूरियोसिटी एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, ये इसमें भी सिंपल कोरिलेशन लगेगा। यदि ये वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो आया सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है। तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कहता है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। मतलब एक सेट ऑफ स्कोर इंटेलिजेंस का, एक सेट ऑफ स्कोर स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट का, दोनों के बीच में हम आर निकालेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पे देखेंगे कि जो आर का वैल्यू आया है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। यदि सिग्निफिकेंट है तो पॉजिटिव सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप माना जाएगा। अब चौथा वेरिएबल जो हमारा है वो कहता है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। क्यूरियोसिटी एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। और एक चीज और ये कह रहा है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट बाय कंट्रोलिंग रादर बाय पार्शियलिंग आउट द इंटेलिजेंस। मतलब क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा R12.3। 3 कौन है यहां, 3 इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो ये पार्शियल आउट हो। इसका हमारे पास क्या है, देयर इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट पार्शियलिंग आउट द इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इस फॉर्मूला को हम देख के लगेगा कि यहाँ R12 चाहिए हमको, R13 चाहिए और R23 भी चाहिए। मतलब 3 सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की मदद से हम पार्शियल कोरिलेशन निकालेंगे और तब देखेंगे कि ये जो वैल्यू आया, अब चूंकि यहाँ 3 कोरिलेशन है, मतलब 3 मीन की जरूरत हुई निकालने में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पार्शियल के लिए n-3 हो जाएगा। तो n-3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम देखेंगे कि जो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू आया वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। यदि सिग्निफिकेंट है तो देयर इज significant relationship between curiosity and scholastic achievement by parceling out intelligence। और दूसरे और भी हम इसमें हाइपोथेसिस बना सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ समझाना था। अब एक किसी और को भी इसके बीच के रिलेशन देख के इसको भी पार्शियल आउट कर सकते हैं, ये हम लोग लर्न कर चुके हैं। आप और भी अपने हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव को ऑन दिस पैटर्न 4 का एक्सटेंशन करके और बढ़ा सकते हैं। 5वां जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कहता है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। मतलब क्या है कि
to find the relationship between curiosity, मतलब curiosity dot combined effect of, मतलब intelligence and scholastic achievement and scholastic achievement. What is this? Scholastic achievement मतलब कि इसका हम लोग ज्वाइंट इफेक्ट देखेंगे इस पे, और इस जिसको हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ क्यूरियोसिटी। तो ये हमारा, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाए हैं, देयर इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। फिर ये भी देखेंगे कि जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट का है और क्यूरियोसिटी का के बीच का रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है कि नहीं। यदि सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस और स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट का कंबाइंड इफेक्ट भी क्यूरियोसिटी को प्रभावित करता है। और थोड़ा सा तो हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन से भी बाकी पार्शियल रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन प्रेडिक्शन की मदद से ये जो हमारा छठा ऑब्जेक्टिव है उसको कर सकते हैं, टू फाइंड आउट हाउ फार the combination of the variables curiosity and intelligence contributes to the prediction of scholastic achievement। और इसके लिए हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाया कि scholastic achievement of the students can be predicted by their curiosity and intelligence। तो इसमें भी क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस को एक साथ रख के स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट के रिलेशनशिप को देख के भी हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट वैल्यू है। इसका मतलब है कि इनका जो ज्वाइंट इफेक्ट है उसकी मदद से हम लोग स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन बिना रिग्रेशन इक्वेशन के कितना इफेक्ट होगा, एक वेरिएबल दूसरे को कितना इफेक्ट करता है, वो पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को, वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और नॉट, हम सिंपल कोरिलेशन की मदद से देखते हैं। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप जानना चाहते हैं तीन में से दो वेरिएबल का, तो एक किसी को पार्शियल आउट करते हैं। ये पार्शियल कोरिलेशन का हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रोल है। और जब हम दो वेरिएबल के ज्वाइंट रादर लीनियर कॉम्बिनेशन का प्रभाव का रिलेशनशिप एक वेरिएबल से देखना चाहते हैं, तो मल्टीपल कोरिलेशन का यूज हम लोग करते हैं। मैं कहता हूं जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूं कि यदि आप सिंपल कोरिलेशन तीन वेरिएबल का निकाल लेते हैं तो पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन तो मुफ्त में आपको मिल रहा है, इसलिए क्यों नहीं उसको ऐड कर दिया जाए। आमतौर पे हम रिलेशनशिप देख लेते हैं, लेकिन पार्शियल कोरिलेशन का इस्तेमाल और मल्टीपल कोरिलेशन का इस्तेमाल अज्ञानता में नहीं करते हैं। यदि आपको लगता है कि वाकई इसमें कोई मल्टीपल और कोरिलेशन का रोल नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अज्ञानता में करते हैं ये समझ के कि ये बहुत कठिन है। तो ये कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ दो फार्मूला आपको याद रखना है, एक मल्टीपल कोरिलेशन के लिए और एक पार्शियल कोरिलेशन के लिए। तो जब भी आप तीन या तीन से अधिक रिलेशनशिप वेरिएबल के बीच देखें तो निश्चित रूप से फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन का आप इस्तेमाल जरूर करें। सो द मेजर part of this particular lecture, which was divided into 11-12 parts, perhaps 11 parts, was that how we can imply simple partial and multiple correlation in order to test our hypothesis. And if along with the simple correlation you utilize partial and multiple correlation for your research study, for your hypothesis testing, then the purpose of this particular lecture will be solved, which is extended, rather divided in 11 parts. So this is all about simple, partial and multiple correlation and its implication in research. Thank you very much.